This is lecture 15 based on first unit for the subject sensor and instrumentations. So in this lecture we are going to discuss about the concept of thermal imaging. Okay, so starting with the some definition regarding the thermal imaging. Okay, so thermal imaging is the process of converting infrared radiation into visible images that depict the spatial distribution of the temperature differences. Okay, so first one, this definition. In other words, or we can say other definition, thermal imaging is a method of using infrared radiation oblique thermal energy to gather information about objects even in low visibility environments. Okay, and the third one is it is a method of visibility or discrimination of the object by knowing its thermal energy even in dark environment. Okay, so from all the above three definition, okay, so we have three different definition. The main objective is what we are doing, we are detecting some object with the help of the radiations. So हो क्या रहा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे इंफ्रारेड वेव्स डाले, ओके, और वो जो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रहा पैटर्न, हम उस पैटर्न को देख रहे हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द इमेजेस. ओके, so if I talk about the in the current scenario, most of this we are using this thermometers which are infrared, based on infrared. ओके, जो आपने देखे होंगे कि हम टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए वी हैव वन मशीन, वो हम सर के पास लगाते हैं, वहाँ से हम टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं. ओके, सो ऑल दीज आर दिस टाइप ऑफ पायरोमीटर्स based on the infrared radiations. Okay, so moving, like if I talk about we have thermal imaging. Okay, so in many movies you have seen like this videos. Okay, so यहाँ पे you can see here, suppose in this figure, okay, we have taken one thermal image. So these are the some animals. So you can see the variation. जो animals हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है. ओके, बाकी रेस्ट पार की सम जो भी अदर मटेरियल और इन्वायरमेंट में जो भी अवेलेबल है उनके कुछ इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी डिफरेंट है. सो थर्मल इमेजिंग में क्या हो रहा है कि उनका रेडिएशन पैटर्न जो है, जो उनकी हीट है, उस वो हीट को डिटेक्ट कर रहा है और उसको इमेज के फॉर्म में हमारे पास शो कर रहा है. लाइक इफ़ इसकी बात करें, सो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे स्कैनर लगे हुए हैं, थर्मल स्कैनर्स. इफ़ वी सी एट द एयरपोर्ट, वो क्या कर रहे हैं, वी आर सीइंग दी हर एक जो पर्सन आ रहा है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है. सो यू कैन सी हियर, ओके, कि जो भी फेस है उस फेस का एक टेम्परेचर मेंशन है. ओके, सो बॉडी का जो हीट पैटर्न है, जो उससे हीट जनरेट हो रही है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर रहा है. ओके, सो सेम हेयर इन दिस फिगर, थर्ड फिगर, यू कैन सी हियर द रेंजिंग इज़ 15 डिग्री टू 36.5 डिग्री सेल्सियस. और एक कलर इंटेंसिटी आपको यहाँ पे इसमें शो की गई है. ओके, सो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है उसकी कलर इंटेंसिटी यू कैन सी हियर कि कैसे कैसे चेंज हो रही है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, जहाँ पे कुछ हल्का सा ब्लैक है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल इमेजिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक आपको आइडिया लग गया कि थर्मल इमेजिंग होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्मल इमेजिंग किस तरह से काम करता है. सो इफ वेन एवर वी टॉक अबाउट द थर्मल इमेजिंग मीन्स दीज process depend on Planck's law and
स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ. सो प्लैंक एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ पे हम यूज़ होता है. सो नाउ लेट डिस्कस सम पॉइंट रिगार्डिंग Planck law. So according to the Planck law, the radiation flux emitted by a black body per unit solid angle per unit area in a directional normal to it in the wavelength range lambda to d lambda is given by lambda d lambda, where L lambda is spectral radiation. Okay, and this L lambda is given by this C1 upon lambda to the power 5 exponential Ct upon lambda t. Okay, so where C1 and C2 are constant. Okay, now if we want to calculate this L, the total radiation है क्या, flux. So this L is calculated by the 0 to infinity L lambda d lambda. जो पैटर्न हमारा सारा आ रहा है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी तक. सो जो टोटल रेडिएशन फ्लक्स एमिटेड आएगा वो L आएगा. एंड जब उसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय द पाई स्क्वायर, ओके, सिग्मा t to the power 4 upon r, where this term sigma t to the power 4 is known as capital M. Okay, so where capital M is radiation existence. Radiation existence. Okay, so you can see here there is a relationship. So M equal to क्या हो गया, sigma t to the power 4. So you can see here there is a relation between the M and T, where T is your temperature and sigma is your Planck constant. Okay, so this is your not Planck constant, this is Boltzmann constant. Stephen Okay, so in this way we can find out one relationship between the T and M. Okay, so let's see, because इनपुट पे हम क्या कर रहे हैं, जो रेडिएशन है उसको ही देख रहे हैं, एंड आउटपुट पे वी आर कैलकुलेटिंग दिस T. So you will get like this linear relationship, because here your terms is coming T to the power 4. So एक relationship मिल जाएगा, or in other words you can do the calibration between the M and T. Okay, so this is all about your Planck's law. Now moving further, the devices are called radiation sensor, जिनके थ्रू हम सेंस कर रहे हैं इमेजिंग, which are popularly known as radiation pyrometers. Okay, so you can see here in this diagram we have this sensor. Okay, thermal imaging, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्या आ रहा है, इमेजेस आ रहा है. इन दिस फिगर यू कैन से जो आउटपुट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन, वट एवर यू वांट टू सी. ओके, सो दीज आर दी सम डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपना पैटर्न जो होता है वो चेक करते हैं या टेम्परेचर चेक करते हैं. ठीक है, दीज टाइप ऑफ सेंसर्स डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. एज यू नो कि यहाँ पे बस हम यहाँ पे ये प्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे एक बटन होता है जिसे हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे वो टेम्परेचर शो हो जाता है. फिजिकली हम उसे कनेक्ट नहीं करते हैं. लाइक इन प्रीवियस ईयर्स जो हम क्या करते थे, थर्मामीटर जो लेते थे वो क्या हम बॉडी पे टच करते थे, तो वो उसके बाद हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते थे. बट नाउ देयर इज़ नो नीड टू एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट.
they are guided by basic law of ब्लैक बॉडी ऑब्जर्वेशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो जो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम थर्मल इमेजिंग में यूज़ करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस रेडिएशन पायरोमीटर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पायरोमीटर्स. फर्स्ट वन इज़ अ टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, सेकेंड वन इज़ अ सिलेक्टिव रेडिएशन पायरोमीटर. ओके, सो इस एम की बात कर रहे हैं जो एम जो इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा टी टू द पावर 4. सो जो एम क्या था हमारा, रेडिएशन एग्जिस्टेंस. ओके, सो अगर हम टोटल रेडिएशन बात करें, मीन्स जो भी हमारे पास वेव्स आ रही हैं, सपोज एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही हैं. सो व्हेन वी आर सेलेक्टिंग ऑल द वेव्स, इट इज़ कॉल्ड टोटल रेडिएशन पायरोमीटर. वो सारा जो भी रेडिएशन हो रहा है वो सबको कैप्चर कर रहा है. सिलेक्टिव रेडिएशन पायरोमीटर मीन्स whenever we talk about the particular lambda, particular wavelength, where this lambda is wavelength. Okay, so wavelength, so particular lambda के बारे में हम बात कर रहे हैं. So this is called the selective radiation pyrometer. Clear? Now moving forward, if I talk about this total radiation pyrometer. Okay, so in this slide you can see here total radiation energy from a heated body is measured as per the Stephen Boltzmann law, जो हम देख चुके हैं. Stephen Boltzmann law पे डिपेंडेंट करता है. The meter is intended to receive maximum amount of radiant energy at the widest range of the wavelength. So widest range मतलब जितनी भी हमारे पास वो वेव्स आ रही हैं उन सबको हम एज ए रिसीवर पर डाल रहे हैं. ओके, सो for understanding the concept of total radiation pyrometer, you can see here in this figure, let's see we have one object is here. So this is, let's see, object. Okay, so this object is generating some heat over here. So जो उसका रेडिएशन पैटर्न है वो यहाँ पे जा रहा है. सो वी हैव वन अरेंजमेंट. यहाँ पे यू कैन सी हियर वी हैव यूज डायफ्राम बोथ साइड, ऑप्टिकल डायफ्राम. सो जो भी हीटेड है वो रेडिएशन हमारा यहाँ पे जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या, जैसे इसमें गया, सो यू कैन सी हियर वी हैव वन वैक्यूम थर्मोकपल ओवर हियर. यहाँ पे जो एलिमेंट देख रहे हैं दिस इज़ योर थर्मोकपल. सो क्या हो रहा है, जो भी रेडिएशन पैटर्न आ रहा है वो इधर से, यहाँ पे वी हैव यूज वन मिरर. यू कैन सी हियर दिस डायग्राम वी हैव यूज दिस वन मिरर. सो जो भी वेव्स आ रही हैं वो यहाँ पे जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं. ठीक है, स्ट्राइक किस पे कर रही है, थर्मोकपल पे. ठीक है, सो थर्मोकपल क्या होगा, हीट करना स्टार्ट होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है, और यहाँ से हम वो देख रहे हैं. ओके, कि उसकी जो हीट पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है. ओके, सो साइटिंग होल, यू कैन सी हियर देयर इज़ ए वन होल. सो यहाँ से हम वो देख रहे हैं. ओके, और इसको हमने एक हाउसिंग मतलब फ्रेम है, यू कैन सी हियर दिस इज हाउसिंग मतलब फ्रेम से पूरा अरेंजमेंट हमने कनेक्ट कर रखा है. ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थर्मोकपल्स. थर्मोकपल्स जैसे जैसे हीट जनरेट टेम्परेचर सेंस करता है वो एक आपको वो वोल्टेज प्रोवाइड कराता रहता है. ओके, बट हियर वी आर जस्ट सीइंग द रेडिएशन पैटर्न, उसका टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ रहा है. टेम्परेचर अगर बढ़ेगा उसका तो उसका जो पैटर्न हीट पैटर्न है वो भी क्या चेंज होता जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द केस व्हेन द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर. Okay, now the next one, selective radiation pyrometer. So you know कि whenever we talk about the selective, so selective means एक particular lambda के लिए यूज कर रहे हैं. Okay, so again you can see the hot body जो भी है वो हमने एक convex lens लगाया, उसमें सारा एक यहाँ पे you can see the temperature detector. ओके, सो जो सारा फोकस किस पे कर लिया, इस टेम्परेचर डिटेक्टर पे.
ना इफ़ यू टॉक अबाउट दी कि हमें अरेंजमेंट ऐसा करना है कि वो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए बात करें, सो फॉर दिस वी कैन यूज़ दी photodiode. ओके, सो वी कैन यूज़ दी photodiode. सो photodiode क्या होता है, वो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए वर्कआउट करता है, बाकी के लिए वो वर्क करेगा ही नहीं. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि इसे हम क्या बना रहे हैं, सिलेक्टिव बना रहे हैं. एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए वो वर्क करेगा, बाकी सब के लिए वर्क नहीं करेगा. Okay, so spectral radiant intensity of a radiated energy from heated body is measured at a given wavelength. The meter intended to receive limited amount of the radiant energy at given range of the wavelength. So in this selective radiation barometer, lambda is limited. Okay, let's see, जो उसकी लोअर लिमिट है वो x है और हायर लिमिट y है. सो जो हम l इक्वल टू इंटीग्रेट कर रहे थे, सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग, पहले उसमें 0 टू इन्फिनिटी कर रहे थे, ना वो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस x टू y एल लैम्डा डी लैम्डा. सो हमने क्या कर दिया, उसे लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड बिटवीन x टू y. ओके, सो अब अगर हमें लिमिटेड करना है, सो वी हैव टू यूज़ मटेरियल और कंपोनेंट जो एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए काम करे. सो वी कैन यूज़ हियर फोटोडायोड्स. ओके, सो वो पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे सारी वेव्स जो आ रही हैं वो इम्पैक्ट करेंगी और वो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ऑपरेट करेगा एंड यू कैन मेजर द वैल्यू. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिलेक्टिव रेडिएशन योर pyrometer. So there are some important point, like I'm just writing, in case of the selective radiation parameter, mostly optical devices are used for this purpose. They are also called optical pyrometer. So remember this point. Okay, जो selective radiation pyrometer है, they are also called optical pyrometer. Clear? Okay, so this is all about your thermal imaging. Now if we talk about the pyrometers, so we use vacuum bolometers. Firstly we will talk about this bolometers. Okay, so these bolometers based on the principle of thermistors, we can use these bolometers. We can use vacuum, thermocouples, okay, measurement
of very low temperature. Okay, so whenever we are required to measure this temperature, low temperature, we use the vacuum thermocouples. Okay, also we can use the, I'm just writing the name, photoelectric transistors. We also use thermopile. So this thermopile is we use for assembly of multiple thermocouples for higher sensitivity and large displays. So whenever we require this higher sensitivity and large display, we use the thermopiles. Okay, so this is all about the thermal imaging. Thank you, students.